Enchanté de Leçon 1 Belly Marche. What do you think this means? Image we can get from the English word images. And belle right here is an adjective to describe that these images are beautiful. Getting a hint of what we're going to do in this lesson? Of course, one of that thing is going to be adjectives. Alright, let's begin. On screen here, you see an image of a restaurant, right? C'est un bon restaurant, good restaurant. And what all things are there in this restaurant? Dans le restaurant, il y a des tables noires, which actually is not matching with my image, but okay. De beaux couverts blancs avec une ambiance très calme. ना मतलब तो बताओ. So in this restaurant, il y a des tables noires. Noir is the color black. So there are some black tables. De bons couverts blancs. It means beautiful white table covers, which again you do not see. Avec une ambiance très calme. Yeah, that we can say the restaurant looks that it has a very calm ambience, a very peaceful vibe, right? So in the first image, we see this good restaurant with description that does not match the image, but does its job well. Let's move on to the next one. There are two kids. Ce sont des amis. They are two friends. Le garçon est gros et mignon. La fille est mince et mignon. What does that mean? The boy right here is gros et mignon. The boy right here is fat and cute. The girl right here is mince, is thin. And mignon. Mignon is again cute. She is also cute. Les deux sont très amusants et aimables. Les deux means the two of them. They look very cheerful and very friendly. So these are two happy friends. Next, what do we have right here? C'est une grande bibliothèque. Une grande bibliothèque. A big library. Dans la bibliothèque, il y a des livres hyper immenses. So in this library, there are books of all shapes and sizes. That is, hyper are thick books, mans are thin books. So you have all sorts of books in this library. C'est une bibliothèque très ancienne. So this is a very old library. Like from the shelves you can see, right? It's an old structure. Okay. So image number 4, what do we have? C'est un petit livre bleu. So this is a small blue book, the one right here. Il y a des leçons courtes. It has some short lessons. Les leçons sont très intéressants. The lessons are very interesting. Et c'est un nouveau livre. It's a new book. So you see, in all the 4 images we saw, we described something. Either people or places. Right? So what do we actually want to learn here? Let's see with the help of an exercise. So let's begin with a task. A very short task. From each image we just saw, you have to find 2 nouns. Could be a person, could be a place, could be a thing. You have to find 2 nouns from each comprehension and make a list like this. There were 4 images.
2 nouns each image. In total, I need 8 nouns from all the 4 images. You can pause the video, go back to the slides, and start watching it again, maybe on mute, so that you can note down the nouns when the text boxes are displayed. All right? Quickly come back because I'm going to show the answers right away. Here we go. So this is the list I made. So if you note, these are all the nouns which I had put in bold in my texts while I was presenting them to you, right? But ma'am, why did we make such list? रुको जरा, सबर करो, पता चलेगा. Note, some nouns are singular while some nouns are plural. अगर ध्यान दिया हो, इनमें से कुछ nouns singular है, कुछ nouns plural. हाँ तो, अरे रुको, बताती हूँ. अब अगला टास्क, इन नाउन्स के साथ जो एडजेक्टिव्स वहां लिखे थे ना, जल्दी से लिख के लो. मैम बहुत तंग करते है ना, नहीं लिखना, पक्का नहीं लिखना. चलो देखो मेरे साथ. यहाँ पे जब टैबलेट को हमने डिस्क्राइब किया था, हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज किया था? वाह. कुबेर के लिए हमने 2 एडजेक्टिव्स यूज किए थे, एक कुबेर से पहले वो, एक कुबेर के बाद ब्लो. इसी तरह मैंने हर नाउन के साथ यूज हुए हुए एक एक या 2 एडजेक्टिव्स की यहाँ लिस्ट बना दी. अरे बाबा किया क्यों है ये? देखिए जरा, जिस तरह कुछ नाउन सिंगुलर और कुछ नाउन प्लूरल्स थे, यहाँ एडजेक्टिव्स भी तो वैसे ही हैं. अगर नाउन सिंगुलर था तो एडजेक्टिव भी, और अगर नाउन प्लूरल था तो एडजेक्टिव भी प्लूरल. तो यही तो हमें सीखना है इस लेसन के अंदर कि कैसे नंबर 1 नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल या वाइस वर्सा बनाए, एंड नंबर 2 कैसे उनके साथ आने वाले एडजेक्टिव्स को उन नाउन्स के हिसाब से मॉडिफाई करके लिखे. अब समझ आया? तो चलो, maintenant now we're going to see la grammaire. फाइनली ग्रामर से शुरू करते हैं. सो पहला टास्क, le pluriel de no. How to make nouns plural in French. रूल 1. हाँ, कुछ रूल्स पिछले साल वाले ही हैं. जिन्होंने पहली बारी मेरी वीडियो देखी है उनके लिए तो सभी कुछ नया है. रूल 1. The nouns that already end with an S, X or Z in singular form remain the same in plural form. लो भाई, शुरुआत ही सबसे आसान रूल से. जिन नाउन्स के एंड में ऑलरेडी S, X या Z लगा हो, जैसे कि आप यहाँ पॉपअप हो रहे एग्जांपल्स में देख रहे हो, वो नाउन्स प्लूरल फॉर्म में सेम रहेंगे. ठीक है, याद रखना, सिर्फ नाउन्स, उनके साथ लगा आर्टिकल चेंज होगा, बट वो नाउन्स सेम टू सेम रहेंगे. ओके. रूल 2. वी मेक प्लूरल ऑफ नाउन्स जनरली बाय एडिंग एन एस. ये तो आसान है, वही इंग्लिश वाला. ज्यादातर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है? आर्टिकल चेंज करना है, नंबर 1. नंबर 2, जो नाउन है उसके एंड में बस एस लगाना है. ये देखो, अ garçon बिना दे garçon, l'horloge हुआ les horloges. एक एक एग्जाम्पल दे दिया, इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ भी और डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ भी. Now moving to rule number 3. The nouns that end with an AL or AIL take AUX in plural form. ये कैसे होगा? कैसे होगा बताती हूँ. You cut AL from the singular form and add AUX in plural. अब जो नाउन AL से एंड हो रहा है उसके साथ में AUX लगा दोगे तो कितना अजीब साउंड करेगा. तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, उस AL को हटा के उसकी जगह AUX लगा दो.
देखो एक एग्जाम्पल, un animal बना des animaux, le travail बना les travaux. So you see al ending या ail ending, दोनों केसेस में मैंने उन्हें कट करके क्या रिप्लेसमेंट यूज किया, aux. एंड तीसरा भी देख लो, le vitrail बना les vitraux. पर कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? फ्रेंच में सब कुछ इतना इजी कैसे हो सकता है? एक्सेप्शंस कहाँ है? तो एक्सेप्शंस ने कहा तुमने पुकारा हम चले आए. तो इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे. जैसे अ बाल मैंने कहा दे बाल, यहाँ पे BAUX नहीं होगा. कार्निवाल, फेस्टिवल, रेसिताल, ये कुछ 4 ही नाउन्स हैं फिलहाल के लिए जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके साथ AUX नहीं आता प्लूरल में. इन चारों नाउन्स के साथ हम एंड में क्या लगाएंगे, एक S. ऑलराइट. और इसी के साथ अपने आखिरी रूल की तरफ बढ़ते हुए, रूल नंबर 4, any noun that ends with a U, could be AU, EU, OU, whatever it is, we add an X to make it plural. अब ध्यान दो, यहाँ मैंने लिखा है add an X, तो कुछ रिमूव नहीं करना, सिंपली जो नाउन जो U से खत्म हो रहा उसके एंड में क्या लगा देना है, एक X. एग्जाम्पल के तौर पे le bijou बना les bijoux, le gâteau बना les gâteaux, और le neveu बना les neveux. Alright, and you know what's coming next? Exceptions. So इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, सिर्फ 5. तो टोटल में देखो तो 9 नाउन्स हैं जो आपको याद रखने हैं एज एक्सेप्शंस. और उन 9 के 9 के केस में प्लूरल कैसे बनेगा, बाय एडिंग एन S, एज यू कैन सी राइट हियर. ऑलराइट. सो अब ये टॉपिक तो खत्म हो गया, बट नए टॉपिक से पहले हम क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज. सो अब ये जो 4 रूल्स अभी अभी समझाए हैं, इनकी प्रैक्टिस के लिए ये एक छोटी सी और थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज. पॉज करो वीडियो, आंसर्स लिखो जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक्स में, एंड देन जैसे ही वो हो जाए वापस आओ, क्योंकि मेरे आंसर्स तो बहुत जल्दी स्क्रीन पे आने वाले. Here you go. टैली करिए अपने आंसर्स, जहां जहां गड़बड़ हुई है जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों हुई है. जहां तक मुझे लगता है बच्चे पहली बार में सिर्फ एक्सेप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, पर अगर आप पहली बार में ही सब सही कर बैठे हो बेटा, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट. सो हमारा प्लूरल ऑफ नाउन्स का टॉपिक तो इसके साथ समाप्त हुआ. अब अगली बारी किसकी, एडजेक्टिव्स की. सो अब हम सीखेंगे कि कैसे इन्हीं एडजेक्टिव्स को फ्रेंच में नाउन्स के हिसाब से बदल के लिखा जाता है. अब याद दिलाऊं, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, किसी भी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं. एंड फ्रेंच में एक स्पेशल रूल है इन एडजेक्टिव्स के लिए, दैट दे मस्ट अग्री टू द जेंडर, यानी मैस्कुलिन है नाउन या फेमिनिन, as well as number of the noun, यानी सिंगुलर है नाउन या प्लूरल. एग्जाम्पल के तौर पे il est grand का प्लूरल क्या बनेगा, ils sont grands. elle est jolie का प्लूरल क्या बनेगा, elles sont jolies. बट ऐसा क्यों, याद दिलाऊं वो कंपैरेटिव टेबल. जरा देखिए इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में, कितनी इजी है ना हमारी इंग्लिश लैंग्वेज. सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं. जो एडजेक्टिव है, नो मैटर नाउन मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, हमारा एडजेक्टिव सेम रहेगा. बट दूसरी तरफ फ्रेंच वाले, ओह, हर नाउन के हिसाब से हर एडजेक्टिव को बदलेंगे. जैसे द बॉय स्टॉल बना ले गार्सों एक ग्रॉ, और उसी का फेमिनिन क्या बना, ला फी एक ग्रॉ में क्या लग गया, एक ई. प्लूरल हुआ
तो लेगा 100 ग्राम, एंड फेमिनिन प्लूरल तो लेगा भी 100 ग्राम, then es. So the adjectives here they change according to the number and gender of. भाई बार बार एक ही बात रिपीट करनी पड़ रही है ताकि दिमाग में ये बैठा लो, और जो सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे इस चैप्टर में करते हैं वो आप लोग ना करो, ठीक है? रूल्स पढ़े? हाउ टू मॉडिफाई दीज एडजेक्टिव्स? दो तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, रेगुलर एडजेक्टिव्स और इररेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव्स कैसे मॉडिफाई होते हैं, उनके रूल थोड़े आसान है, तो पहले वो करते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स को फेमिनिन बनाने के लिए हम सिंपली हमारे एडजेक्टिव में क्या ऐड कर देते हैं, एक ई। जैसे सबसे पहला एग्जांपल देखा था, il est grand बना elle est ronde, il est petit बना elle est petite। तो ये रेगुलर एडजेक्टिव्स के एग्जांपल थे जिन्हें फेमिनिन बनाने के लिए मैंने सिंपली क्या ऐड करा, एक ई एडजेक्टिव में। तो चलो जल्दी से इन सेंटेंसेस को फेमिनिन बनाओ वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मेरे आंसर्स तो बस ये रहे। फेमिनिन जब इन्हें बनाओगे सिर्फ एडजेक्टिव में ही लगा के मत छोड़ देना, सब्जेक्ट को भी फेमिनिन कर देना। इल का फेमिनिन क्या होता है, एल। उस हिसाब से मैंने सारे सेंटेंसेस अपने लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं रेगुलर एडजेक्टिव्स को प्लूरल कैसे बनाएं? जब फेमिनिन बनाने के लिए सिर्फ ई ऐड किया तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड करना होगा। एग्जाम्पल देखें, il est grand बना il sont grand, as you can see मैंने grand में s ऐड कर दिया। और elle est petit क्या बना, elle sont petit, petit में भी es ऐड हो गया। सो इतना सा रूल था, एक्सरसाइज भी जल्दी से कर लेंगे आप। पॉज करिए वीडियो, क्योंकि मेरे आंसर्स तो बस चुटकी बजाते ही हाजिर। सो देखिए किस तरह मैंने सब एडजेक्टिव्स के एंड में एस लगाया है। और हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब को प्लूरल बनाना मत भूलना। इले बनेगा il sont और एले बनेगा ils sont। ये मत बोलना मैम पहले क्यों नहीं बताया। जब प्लूरल कर रहे हो तो पूरा सेंटेंस ही तो प्लूरल करोगे, सिर्फ एडजेक्टिव थोड़ी। चलिए एक बार एक साथ देखिए सारे रेगुलर एडजेक्टिव्स। उप्स, हाँ ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए। कुछ कुछ बॉक्सेस मैंने खाली छोड़े। रूल्स अब आप समझ ही चुके हैं, तो इन खाली स्पेसेस को भर दीजिएगा जरा। और इसी के साथ आपके सारे रेगुलर एडजेक्टिव्स का एक टेबल रेडी हो जाएगा। ये एरोस को भी फॉलो कर सकते हैं। मैस्कुलिन सिंगुलर से मैस्कुलिन प्लूरल के लिए क्या ऐड होगा, एस। फेमिनिन सिंगुलर से फेमिनिन प्लूरल के लिए भी क्या ऐड होगा, एस। और हाँ, मैस्कुलिन से फेमिनिन के लिए क्या ऐड होता है, ई। ऑलराइट, तो ये छोटे छोटे रूल्स जो अभी हमने क्लास में डिस्कस किए, उनके जरिए ये टेबल आराम से पूरा हो जाएगा। और बताओ कैसा लगेगा? कुछ इस तरह। So, इस टेबल में आपके पास वो सारे रेगुलर एडजेक्टिव्स की लिस्ट आ गई जो आपके लेसन 1 में बुक में गिवन है। तो चलिए आसान रास्ता तो पार कर लिया, बड़े चढ़ाई की ओर। irregular adjectives. Now let us learn how to modify irregular adjectives according to the noun. तो सबसे पहले एक irregular adjective का feminine form कैसे बनेगा वाला? रूल 1, अगर एक एडजेक्टिव के एंड में ऑलरेडी ई आ रहा है मैस्कुलिन फॉर्म में, तो फेमिनिन फॉर्म में हमें एक्स्ट्रा ई लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इलेजन बना इलेजन, एडजेक्टिव हमारा क्या रहा, सेम टू सेम। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है हमारा मैंस। तो अगर वो मैस्कुलिन सिंगुलर में मैंस है तो फेमिनिन सिंगुलर में भी क्या रहेगा, सेम टू सेम। ओके। रूल 2,
वो एडजेक्टिव्स जो इन लेटर्स से खत्म हो गए, एस, एल, ओ एन और ई एन। आसान करने के लिए बोलूं तो एस, एल और एन। हाँ, तो जो एडजेक्टिव्स इन लेटर्स से खत्म हो रहे हो, दे फॉर्म फेमिनिन बाय डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट। ये जो लेटर्स है ना, एस, एल और एन, इन्हीं को डबल कर दो और फिर इनके एंड में क्या लगा दो, ई। जैसे इले बॉन, ओ एन से खत्म हो रहा है, फेमिनिन कैसे बना, एले बॉन, डबल एल ई। इसी तरह ये टेबल में ले आई, ग्रो बना ग्रोस, डबल एस ई। क्या लगता है जॉन्टील क्या बनेगा, एल एंडिंग, जी ई एन टी आई डबल एल ई। ओके, तो इस तरह आप इन एडजेक्टिव्स को याद कर सकते हो कि जो एडजेक्टिव एस, एल और एन से खत्म हो, उनका फेमिनिन बनाने के लिए लास्ट लेटर डबल करके फिर ई लगे। ऑलराइट, तो अब हमने दो रूल्स कर लिए, तो इससे पहले आगे बढ़े, इन दो रूल्स को प्रैक्टिस करें। ये रही एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर। पूरे सेंटेंसेस को फेमिनिन बनाना है, सिर्फ एडजेक्टिव तो नहीं। चलो चलो पॉज करो वीडियो एंड शुरू करो एक्सरसाइज क्योंकि मेरे आंसर्स तो बस ये रहे। सो यू सी कैसे सैम्पातीक के एंड में ऑलरेडी ई था, तो मैंने उसे फेमिनिन में सेम रखा। अब बाकी तीनों केसेस में एस, एल और एन लास्ट अल्फाबेट था, तो फेमिनिन फॉर्म में मैंने उन अल्फाबेट्स को डबल करके फिर ई लगाया। तो अब दो रूल्स तो हमें समझ आ गए। बड़े रूल नंबर 3 की तरफ चलिए। इन एडजेक्टिव्स एंडिंग विद एक्स we add se in the feminine form। ये क्या है देखिए जरा, इले अर एक्स से खत्म हो रहा था, तो मैंने एक्स हटा के क्या लगा दिया, एस ई, उसे फेमिनिन बनाने के लिए, एले अरज। इसके जैसे कुछ और एडजेक्टिव्स देखें, सेरिया, ओनुय। दोनों के केस में फेमिनिन बनाने के लिए एक्स रिमूव करके मैं क्या लिखूंगी, एस ई। वेरी गुड। ओके, रूल नंबर 4, whenever an adjective ends with eau in masculine, we add ELLE in the feminine form। तो यानी क्या करेंगे इस केस में, EAU को रिमूव करके ELLE लगा देंगे। जैसे बो बना बेल, और देख ले नूवो क्या बनेगा, NOUVELLE, नूवेल। वेरी गुड। सो ये दो ही एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमें ये रूल अप्लाई करना है, EAU कट करके क्या लगाना है, ELLE। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। दो रूल हो गए ना, एक्सरसाइज की बारी आ गई। चलिए, इन्हीं दो रूल्स के बेसिस पे ये छोटी सी एक्सरसाइज जल्दी से ट्राई करो, क्योंकि मेरे आंसर्स तो बस ये रहे। मालेर बना मालेरस, नूवो बना नूवेल, नेवा बना नेर्वस एंड बो बना बेल। क्या लगता है हो गए रूल्स खत्म? नहीं बेटा, एक छोटा सा रूल और है, देखते। इले अ बर्गासन, क्या मतलब, ही इज अ हैंडसम बॉय। एले यंग बेल्फी, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। हाँ, ब्लैंक। ही इज अ हैंडसम चाइल्ड, चाइल्ड है, हैंडसम है, यानी मैस्कुलिन है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, वो। बट नहीं, ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों भला,
अगर मैं यहाँ बो लगाती हूँ, ये बनेगा इलेता बोफो। साउंड ही इतना गंदा कर रहा है कि पिंकी गायब हो गया। तो फिर एग्जैक्टली यहाँ आएगा क्या? देखिए जरा, देर आर 3 एक्सेप्शनल एडजेक्टिव्स जिनकी एक यूनिक मैस्कुलिन वोवल फॉर्म होती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। जैसे बुफ, बेल, बेल, नूवो, नोवेल, नोवेल, विया, पियाई, पियाई। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि जो इस स्लाइड पे हमने एग्जाम्पल देखा, he is a handsome boy, क्योंकि यहाँ ये child was beginning with a vowel, the letter E, यहाँ पर हम लिखेंगे एडजेक्टिव की मैस्कुलिन वोवल फॉर्म which is बेल, B-E-L, ऑलराइट, ना कि P-E-A-U, क्योंकि उस केस में इस एडजेक्टिव और नाउन को साथ में प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फ्रेंच में ये 3 एडजेक्टिव्स हैं जिनकी एक यूनिक मैस्कुलिन वोवेल फॉर्म है, और वो भी क्यों? फॉर द ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ताकि प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव और नाउन की आसानी से की जा सके। ठीक है, अब फेमिनिन वाले हो गए पक्का। हाउ टू मेक एन इरेगुलर एडजेक्टिव प्लूरल। हाँ, हो गए फेमिनिन वाले। अब ये भी देख लिया जरा। रूल 1, whenever an adjective ends with an s or x in singular, it remains the same in its plural form. अगर वो एडजेक्टिव सिंगुलर फॉर्म में s या x से खत्म हो रहा है, तो प्लूरल फॉर्म में भी वो सेम रहेगा। जैसे इले मोवे बना इल सो मोवे। सब्जेक्ट चेंज हुआ, वर्ब चेंज हुआ, पर एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव की सिंगुलर फॉर्म में जब ऑलरेडी एस था तो हम फिर से एस नहीं लगा सकते। एक और एग्जांपल देखें, इले और यहाँ ऑलरेडी एक्स है, तो प्लूरल फॉर्म में भी मैंने फिर से एक्स या फिर से एस नहीं लगाया। ठीक है, तो ये कुछ इसके जैसे इस रूल को, तो ये कुछ इस रूल को फॉलो करने वाले एडजेक्टिव्स। एंड रूल नंबर 2, जब भी कोई एडजेक्टिव ईएयू से खत्म हो, उसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? लेटर एक्स। यही चीज हम नाउन्स में भी करते हैं ना, यू एंडिंग नाउन्स के प्लूरल फॉर्म में एक्स लगाते हैं। सेम फंडा एडजेक्टिव्स में, जैसे इलेबो प्लूरल में क्या बनेगा? इल सोबो, राइट। इले नुवो का प्लूरल क्या होगा? इल सोनुवो। जैसे मैंने कहा था, ये 2 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके अपने खुद के रूल्स हैं। बाकी एडजेक्टिव्स हमारे एडजस्ट कर लेते हैं बाकी रूल्स के साथ, बट इन 2 ने अपने यूनिक 2 रूल्स बनाए। चलिए, टाइम टू प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज ऑफ प्लूरल इरेगुलर एडजेक्टिव्स। चेंज करिए इन सेंटेंसेस को प्लूरल में। पॉज करिए वीडियो, क्योंकि मैं तो अपने आंसर्स बस अब दिखा रही हूँ। सो देख सकते हैं, पिछली 2 स्लाइड्स में जो हमने रूल्स किए, उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हमने इन एडजेक्टिव्स को क्या बनाया? प्लूरल। चलिए, अब क्या हो गए चेंज, रेगुलर एडजेक्टिव्स भी और इरेगुलर भी। एक्सेप्शंस नाम की भी एक चीज होती है, भूल गए? तो देखिए, देयर आर सम एडजेक्टिव्स दैट फॉलो नो रूल, उन्हें मरवा ही नहीं है किसी रूल की। कौन से हैं वो? ये तो लॉन्ग और ओल्ड और फ्रेंच में इनकी यूनिक एडजेक्टिव फॉर्म्स, जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, इतने सारे रूल्स और इतने सारे इरेगुलर एडजेक्टिव्स को जरा एक टेबल में सम अप करें। देखिए, so these are adjectives irregular. Again,
मैंने छोटे छोटे ब्लैंक्स बीच बीच में छोड़े हैं। तो मिले तो जरा इन्हें पॉज करके फिल कर लीजिएगा, और अगर ना मिले तो इस स्लाइड पे इस टेबल को देख लीजिएगा, जहां ये सारे इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स मैंने आपको एक साथ दे दिए हैं। ठीक है, चलिए लेसन खत्म करने से पहले क्या करेंगे, एक मिक्स्ड एक्सरसाइज। सो आपको इस एक्सरसाइज में नाउन्स को ध्यान से देखना है, और उन नाउन्स के जेंडर और नंबर को आइडेंटिफाई करके, यानी ये देख के कि वो नाउन मैस्कुलिन है, फेमिनिन, सिंगुलर है या प्लूरल, उस हिसाब से ब्रैकेट वाले एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करना है। अब तो हमें सारे रूल्स आते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। चलिए पॉज करिए वीडियो जल्दी से, क्योंकि मेरे आंसर स्क्रीन पे होंगे इन 3, 2, 1। हियर यू गो। टैली और आंसर्स, एंड अगर कोई आंसर टैली नहीं हो रहा तो जरा अपने नोट्स चेक करो, क्या गड़बड़ की है वो देखो। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला लेसन अशांति द का कंप्लीट होता है। I will meet you in the next lesson. Till then, au revoir.